Hello everyone. First of all, I'm so sorry I haven't been active for the past few days. It's just because my life was so busy, or me being honest, maybe I was just done with few people for a while. Hard to say, but it is what it is. Anyway, welcome back to the Indian Blame Fest, where we casually blame everything from parents to patriarchy. But today I'm going to touch something very, very controversial. Any guess? Yes, we are blaming a relationship. But let me clear, I'm not against that relationship. I'm just saying that one distraction disguised as a true love. Let's talk. Let's just say it straight. Why do some people forget themselves the moment they get into a relationship? They start behaving like they have signed a lifelong contract. Health, care, routine, career, dreams, everything they are ready to sacrifice. क्या प्यार के नाम पे अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस कर देना मैच्योरिटी है? नो, आई बिलीव इट इज़ अ इमोशनल डिपेंडेंसी, और ऑल्सो वी कैन से इट इज़ अ इमोशनल एडिक्शन. यस, मेरा तो यही मानना है. And again, I'm saying I'm not against a relationship, but let's be honest, when your entire day revolves around that, did they reply, mood में क्या है, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ है, किसके साथ है, then please, your own life is now taking a back seat. तुम्हारा स्टडी प्लान हो या फिटनेस हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हो, सब कुछ उस एक रिलेशनशिप के मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग चल रहा है. यू आर नॉट इन अ लव, यू आर जस्ट अ डिस्ट्रैक्टेड. Yes, I said it, and it is what it is. And slowly you are losing grip your own future. So I'm just curious to know how you cancel your plans to talk to them. You skip classes to make them feel better. You lose sleep, energy, confidence just to fix things. Why? Because deep down तुम्हें लगता है कि अगर वो चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. But a real talk, क्या तुम खुद के बिना कुछ हो? If your entire worth depends on how someone else treats you, you're not in love. You have just abandoned yourself. And when we talk about career, life, identity and all that, then career breaks हो जाते हैं, एग्ज़ाम फेल हो जाता है, सेल्फ डाउट इतना बड़ा हो जाता है कि किसी और की लाइफ जी रहे हो ऐसा फील होने लगता है. और ऐसा लगता है ये मेरी लाइफ है ही नहीं, ये मैं था ही नहीं. और फिर जब वो पर्सन छोड़ के चला जाता है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है. तुम ब्लैंक होते हो, तुम लॉस्ट होते हो. तुम्हें फील आता है कि क्या था लाइफ में, क्या बनना था, कुछ याद ही नहीं है. और तब सही मायने में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जिस वक्त तुम रिलेशनशिप में थे उस वक्त तुमने कुछ किया ही नहीं. तो कहाँ से तुम्हें किसी चीज़ की कोई उम्मीद रहेगी? आई जस्ट वांटेड टू से एग्ज़ाम मिस हो गया, इंटरव्यू के दिन मूड ऑफ था, क्लास बंक किया क्योंकि वो अपसेट था. ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके तुम्हारा लॉन्ग टर्म डैमेज कर रही होती हैं. और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम तो सपोर्टिव हो रहे हो या तुम अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, बट नहीं. In reality, you are just neglecting yourself because you spent all your time fixing that relationship and forgot to build your own life. Now I'm going to be a little bit brutal. So stop confusing love with obsession and stop calling your care is just all like तुम कंट्रोल करने लगे हो कि तुम केयर कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो. बट नो, इट इज़ नॉट राइट थिंग. इफ समवन्स प्रेजेंस मेक्स यू इग्नोर योर गोल्स, इट इज़ नॉट अ हेल्दी, इट इज़ अ टॉक्सिक, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिकनेस. और अगर तुम खुद के साथ अकेले नहीं रह सकते हो तो कोई तुम्हारे साथ कितने टाइम तक खुश रहेगा? कोई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कब तक खुश रहेगा? एक ना एक पॉइंट के बाद उसे भी ये फील होने लगेगा दैट इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ खींचा जा रहा है. Imagine, I'm just saying, imagine you have got your own routine, you are studying, working, learning, and you're busy in your life, and your life is moving are really good. So if relationship is not going well, you both are mature enough, so you both are going to talk. अगर तुम दोनों बात कर रहे हो, चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व हो जा रही हैं, इट इज़ गुड फॉर यू. एंड इफ इट इज़ नॉट, देन यू गाइज हैव टू मूव ऑन. तो तुम्हारे पास अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक साइड में ऑप्शन है, that you have to focus on yourself. ये नहीं सोचना होगा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है. एंड नाउ इफ समवन कम्स इनटू योर लाइफ कि
इन सब चीज़ों के बाद कोई तुम्हारी लाइफ में आ रहा है तो दे फिट विथ योर पाथ, दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस इट। तब तुम इनसिक्योर नहीं होगे, तब तुम हर छोटी छोटी बात पे ब्रेक डाउन फील नहीं करोगे, बिकॉज योर लाइफ डजेंट रिवॉल्व अराउंड वन पर्सन, यू हैव बिल्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ। सो हेल्थी रिलेशनशिप क्या होता है कि जो तुम्हारा ग्रोथ एक्सेलरेट करे, ना कि रिप्लेस करे। एक कनेक्शन जो तुम्हें और डिसिप्लिन बनाए, नॉट समवन हु बिकम्स योर डिसिप्लिन। अगर तुम खुद के बिना खुश नहीं रह सकते और किसी के साथ कभी खुश होना चाहते हो तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद के साथ खुश रहना, सो दैट तुम्हारे आसपास जो भी है वो खुश रहे। एंड लिसन, आई एम गोइंग टू से लाइक, stop turning relationships into your full-time job, stop using love as an excuse to ruin your potential। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, सब कुछ वैल्यूएबल है। डोंट वेस्ट इट ऑन समथिंग दैट मेक्स यू स्मॉलर। वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज वेन थिंग्स फॉल अपार्ट, एंड दे विल, only one thing will save you, and that's the version of you that didn't give up on yourself. If this hits somewhere, and I'm wishing that maybe it is, so please like, share and subscribe. Thank you.